Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. Today we are going to start with the most important topics on world history. World history is a very important part of your GS paper 1. And in mains, world history based questions, around 3 to 4 questions are asked from world history. So to cover the world history is very important, and we are going to cover only those topics which are highly important from the perspective of mains. We have taken these topics from the most asked questions in the PYQs, that is the previous year question paper. So at the end of these sessions, there will be 6 sessions. At the end of these 6 sessions, we are going to make sure that all the important topics of world history are covered by us here in the class. The class PDFs, you will be getting them on our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. So you can download the class PDF from the Telegram channel. लिंक इज़ गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप आराम से वहाँ जाकर क्लास PDF को डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट टू योर attention that from today the new batches are starting on Unacademy Plus, the new year resolution UPSC CSE batches. And I am taking the history classes, ancient Indian history, medieval Indian history and modern Indian history. I am taking these batches on Unacademy Plus, and they are starting from today, that is 4th of Jan. Now there are 3 batches, which is the new year resolution batch, which have been launched by Unacademy. GS 6 months batch course, GS 1 year batch course and GS 2 year batch course. 2 साल का, 1 साल का और 6 महीने का कोर्स लॉन्च हुआ है. These are the 3 courses that have been launched. And these 3 courses are in all the languages, हिंदी, इंग्लिश एंड bilingual. ठीक है, सारी जो आपकी मेन प्रेफरेंस लैंग्वेज होती है उन्हीं में ये कोर्सेज हैं. सो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस यू कैन इनरोल इन एनी ऑफ दीज बैचेस. Entire prelims coverage will be done by us. Top educators, ex-IAS, IRS, IPS officers are taking classes here. PDF study material will be provided. Doubt clearing sessions are also going to be there. Test series, mains, prelims, there will be there. Interview preparations. Link is given below in the description box. You can use code Sharma20 to get 10% discount. And the link which is given below in the description box, already discount has been added. You can click on the link and enroll. तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उसमें ऑलरेडी डिस्काउंट भी एडेड है. तो अगर आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करते हो तो आपको ईजिली डायरेक्टली बिना कोड डाले भी डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है. So make sure that you subscribe today, because from today only the batches are starting. So you will not miss out on any topic, any subject. Okay. So I'll be waiting for all of you in the class. Let's start today's session, American Revolution. So when we talk about American Revolution, जब हम बात करते हैं American Revolution की, always remember world history, it is a part of mains, not prelims. Okay. Knowing the syllabus is very important. If you do not know the syllabus, you will end up wasting your entire time and efforts. अगर आपको syllabus नहीं पता, आपका time effort दोनों waste होने वाले हैं. Always remember, world history is not a part of prelims, it is a part of mains. I have met many students who are preparing world history from the perspective of MCQs, prelims. कितने बच्चे ऐसे हैं जो prelims के perspective से पढ़ते हैं, that they are wasting their time. They are remembering each and every year, everything. No, right? You do not have to go in detail, year wise, event wise detail में नहीं जाना. You have to study subjective wise from mains perspective. GS paper 1 में ही है ये. ठीक है. So let's start with American Revolution today. शुरू करते हैं. When we talk about the term revolution, ठीक है, what do you understand by the term revolution? First of all, let us have a clear image in our mind कि revolution होता क्या है. What do you mean by revolution? Revolution means bringing a change. Revolution means bringing a change. Bringing a change in or into the society. ठीक है. सोसाइटी के काफ़ी एस्पेक्ट्स होते हैं. There are many aspects in the society. So bringing a change into the society against suppression एंड ऑपरेशन. ठीक है. अगर आपको कोई सप्रेस कर रहा है, कोई ऑपरेस कर रहा है, somebody is trying to pull you down, suppressing, dominating you. If you stand up against that, if you face them, that is, and then you also motivate others in the society, you are transforming the entire society. You are not just individually standing against the oppressor, okay, or the suppressor.
You are motivating everybody in the society, bringing about a change of mindset in the society to stand up against what is wrong. That is revolution. उसको हम revolution बोलते हैं. In Hindi it is known as क्रांति. ठीक है. अब क्रांति का मतलब ये नहीं होगा कि आप सिर्फ spiritual change ला रहे हो. क्रांति does not means, revolution does not means only you are working on one aspect of change. No. Holistically 360 degree, financially, economically, mentally, physically, right? If you are bringing a change in the society, that is revolution. 360 degree change. ठीक है, ये एक 360 degree change होता है. Point clear? यहाँ तक सबको clear हो गया revolution क्या है? ठीक है. Now the question comes when we talk about the question. So now when we talk about American Revolution or any revolution for that matter, हम किसी भी revolution की बात करें, the causes are same. Behind the revolution, the causes are almost same. If we compare American Revolution with revolt of 1857, the causes were same. Causes same थे. ठीक है. तो always remember any revolution that takes place against the oppressor, against the dominating party, the causes are always same. ठीक है. So over here when we start with American Revolution, we should have a background about this revolution. इस revolution का एक background हमारे पास होना चाहिए. क्या background है ये समझ लेते हैं. So what were the reasons forming the background of this revolution? First was, write it down. Make sure you are making notes with me in the class. ठीक है, आप मेरे साथ साथ notes बनाते जाइए. First was enlightenment ideas. This was the basic first reason. Enlightenment ideas. Why did Americans start the American Revolution? Because they were mentally changing. Mentally they were having a change in their mindset. Why? Because of enlightenment ideas. This enlightenment ideas helped to increase the American colonies, shed the British rule. ठीक है, ये enlightenment ideas जो थे, enlightenment ideas, what is enlightenment? प्रबोध मतलब क्या होता है? What is enlightenment? When you develop an awareness of the next level. Enlightenment doesn't mean समाधि. यहाँ पर enlightenment का मतलब समाधि नहीं है that you are leaving this body, your soul is getting liberated. No, we are not talking about that enlightenment. Enlightenment means when your mind opens up to a next level of awareness. Why? What is happening around us? What are we, you can say handling for so many years? हम इतने टाइम से, ठीक है, क्या क्या सह रहे हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है. सो इनलाइटनमेंट आइडियाज का मतलब क्या है? जब आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है, जब आपको समझ आने लगता है रियल में कि हमारे आसपास हो क्या रहा है. ठीक है, सो दिस इज इनलाइटनमेंट व्हेन योर अवेयरनेस इट स्पार्क्स ऑफ. ठीक है, सो अमेरिकन्स ऑल्सो गॉट इनलाइटेंड. हाउ? They started understanding that we are getting dominated by somebody else. उनके दिमाग में लाइट जल गई कि भाई हमें डोमिनेट किया जा रहा है. ठीक है, we are not equal partners. Britishers and Americans are not equal partners. Britishers are trying to dominate the Americans. ठीक है, so enlightenment ideas because of which we started, the Americans started fighting for the new nation. Second is the demand of becoming a republic. ठीक है, दे वर द कॉलोनी. अमेरिकन्स क्या थे? अमेरिका क्या था? कॉलोनी था. इट वॉज अ पार्ट ऑफ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स और ब्रिटेन. ठीक है, सो दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन गेटिंग द टैग ऑफ बीइंग अ रिपब्लिक नेशन. ठीक है, प्लस थर्ड रीजन इज देयर लिबरल सोसाइटी. थर्ड रीजन है उनका लिबरल सोसाइटी. वी हैव ऑल सीन इन टुडेज टाइम ऑल्सो इट इज एप्लीकेबल दैट द ब्रिटिश सोसाइटी इज वेरी क्लोज्ड सोसाइटी. राइट, it is very closed society and mindset wise also they are very strict. अगर हम mindset भी देखें regarding the clothes, regarding how they speak, how they sit, how they walk, they are very restrictive. ठीक है, वेरी रिस्ट्रिक्टिव पीपल, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है. उनकी क्वीन की फैमिली कैसे चलती है, कैसे बैठती है, उठती है, कैसे खाती है, हर चीज़ का रूल्स और रेगुलेशंस है. इवन इट इज सेड दैट इन द ब्रिटिश क्राउन द फैमिली मेंबर्स दे आर गिवन अ लिस्ट हाउ टू ड्रिंक वाटर ऑल्सो. उनको लिस्ट ऑफ रूल्स दिए हैं कि आपको चाय कैसे पीनी है, पानी कैसे पीना है, जूस कैसे पीना है. देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ ड्रिंकिंग टी, ड्रिंकिंग जूस एंड ड्रिंकिंग वाटर. ओके, पॉइंट क्लियर हो रहा है? सो दैट इज वाई the society was very restrictive in nature, but American society was very liberal society. ठीक है, ये काफ़ी खुले दिमाग की, खुले विचार की सोसाइटी थी. So because of societal difference also they wanted to remove themselves away from Britishers. They wanted to become a free nation. They wanted to become a liberal nation, liberal society. Point clear हो रहा है सभी को यहाँ तक? तो these were the basic reasons plus economic deterioration. We all know Britishers what they did in India.
ठीक है। इंडिया में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दे स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। दे स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम अस, हमसे रिसोर्सेज निकालना शुरू कर दिया था। दे वांटेड टू लूट इंडिया, प्लंडर इंडिया, डेटीरियोरेट आवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। सेम थिंग दे डिड इन अमेरिका ऑल्सो, सेम चीज उन्होंने अमेरिका में की। सो देयर अमेरिकन इकोनॉमी वाज ऑल्सो गोइंग डाउन, ठीक है। दैट इज वाई द अमेरिकन्स दे स्टूड अप अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द बैकग्राउंड। जब हम बात करते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन की, when we talk about the American Revolution, we should remember that it is also known as American Revolutionary War. इसको हम American Revolutionary War भी बोलते हैं। It is also given another name, that is the US War of Independence, ठीक है। ये US War है इंडिपेंडेंस का, which was fought between कौन कौन सी दो पार्टीज थी। First we have the Kingdom of Great Britain, and on the other hand we have the 13 British colonies on the North American continent, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की 13 ब्रिटिश कॉलोनीज और ब्रिटेन के बीच का ये युद्ध था। दिस वॉज द वॉर बिटवीन ब्रिटेन एंड 13 ब्रिटिश कॉलोनीज ऑन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। नाउ दिस वॉर, द ईयर ऑफ दिस वॉर वॉज 1776 to 1783। ये इस वॉर का टाइम पीरियड था, दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बैकग्राउंड। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड से शुरू करते हैं, ठीक है। सो ओवर हियर वी हैव सीन, इधर हम देख रहे हैं दैट दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज यूरोप, ठीक है। ये हो गया आपका इंडिया, दिस इज इंडिया, दिस इज अफ्रीका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो दिस वॉज द मैप, ठीक है। थ्रू द मैप ओनली वी आर गोइंग टू स्टडी। अब नाउ ओवर हियर यू विल सी दैट इन 1600 की अगर हम बात करें, ठीक है, इन 1600 ब्रिटिशर्स दे एंटर इंडिया। 1600 में ब्रिटिशर्स आते हैं इंडिया, ठीक है। एंड इन 1608 दे वेंट इनटू द कोर्ट ऑफ जहांगीर टू एक्वायर द ट्रेडिंग राइट्स। 1608 में जहांगीर की कोर्ट में जाते हैं और बोलते हैं कि भाई हमें ट्रेडिंग राइट्स चाहिए, वी वांट टू ट्रेड इन योर नेशन, सो वी वांट राइट्स फ्रॉम यू, ओके। सिमिलरली इन द सेम टाइम पीरियड दे केम टू इंडिया, इन द सेम टाइम पीरियड दे क्रॉस्ड द अटलांटिक ओशन एंड वेंट टू नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके ये पहुंचे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इन 1607 दे रीच्ड नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट बाय क्रॉसिंग द अटलांटिक ओशन, ठीक है। एंड दे एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट कॉलोनी ओवर हियर बिकॉज नॉर्थ अमेरिका वाज नॉट इनहैबिटेड बाय किंग्स, इंडिया वाज इनहैबिटेड बाय किंग्स। इन इंडिया देवर किंग्स विच वर रूलिंग, इंडिया में तो राजा लोग रूल कर रहे थे, बट इन नॉर्थ अमेरिका इट वाज नॉट अ फुल फ्लेजेड सेटल्ड प्लेस, फुल फ्लेजेड सेटल्ड जगह नहीं थी नॉर्थ अमेरिका। दैट इज वाई दे थॉट दैट वाई नॉट गो टू नॉर्थ अमेरिका एंड एस्टैब्लिश आवर ओन कॉलोनी ओवर देयर, वी नीड टू एक्सपैंड आवरसेल्व्स, हमको ऐसे ही तो एक्सपैंड करना है, ठीक है। वी नीड टू एक्सपैंड आवरसेल्व्स, सो लेट्स गो टू नॉर्थ अमेरिका एंड ओवर हियर वी आर एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया। यहाँ से तो भारत से रिसोर्स ले रहे हैं, यहाँ से हम नॉर्थ अमेरिका से खींचेंगे, ठीक है। सो दे वेंट टू नॉर्थ अमेरिका इन 1607, दे एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट कॉलोनी ओवर हियर। इन्होंने अपनी पहली कॉलोनी यहाँ पर स्टैब्लिश करी, विच वॉज इन जेम्स टाउन। पहली कॉलोनी थी जेम्स टाउन, इट वॉज इन वर्जीनिया। जेम्स टाउन वॉज द सिटी विच वॉज इन स्टेट ऑफ वर्जीनिया, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। सो दे एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट कॉलोनी ओवर हियर। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे करते करते 13 कॉलोनी स्टैब्लिश कर ली। लाइक वाइज दे एस्टैब्लिश 13 कॉलोनीज ओवर हियर एंड टिल 1732, राइट इट डाउन, टिल 1732 13 colonies were established by the Britishers in North America। 13 कॉलोनीज इन्होंने आराम से स्टैब्लिश कर ली थी यहाँ पर, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1607 टिल 1776 कॉलोनाइजेशन प्रोसेस कॉन्टिन्यूड। इस टाइम पीरियड में कॉलोनाइजेशन कॉन्टिन्यूड, दैट मीन्स रूथलेसली दे वर कॉलोनाइजिंग, they were trying to bring more and more land and territories under their own control। अपने कंट्रोल में ज़्यादा से ज़्यादा लैंड, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज वो लेकर आ रहे थे, ठीक है। एंड इट इज सेड दैट बाय द ईयर ऑफ 1776 द रिलेशनशिप बिटवीन इंग्लैंड एंड इट्स ओन मदर कंट्री, दैट इज इट्स ओन कॉलोनी, इंग्लैंड के बीच में और उसकी खुद की कॉलोनी इन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, द रिलेशन बिटवीन देम
they started getting worse. Why? Because of certain reasons that we are going to study. कुछ reasons हुए 1776 से relation खराब होने शुरू हो गए between England and between North America, ठीक है, and that is why the Americans started fighting for independence from Britishers, from England. इतना क्लियर है? बैकग्राउंड इज क्लियर और नॉट? प्लीज लेट मी नो इफ द बैकग्राउंड इज क्लियर. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉजेज. अब थोड़ा सा कॉजेज समझ लेते हैं, दैट व्हाई, व्हाट आर द कॉजेज दैट दी अमेरिकन्स दे वर सेइंग वी वांट अनदर, वी वांट आवर ओन नेशन. ऐसा क्या रीजन था कि अमेरिकन्स कह रहे थे हमें अपना नेशन चाहिए? सो बेसिकली ऑल द रीजन्स फॉर एनी काइंड ऑफ रिवोल्ट इज सेम. सारे रिवोल्ट्स का रीजन सेम ही होता है. फर्स्ट रीजन इज सोशियो कल्चरल रीजन, सोशियो कल्चरल रीजन. सेकेंड रीजन इज पॉलिटिकल रीजन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राजकीय कारण, ठीक है. थर्ड कॉज इज इकोनॉमिक रीजन, दैट इज आर्थिक कारण, ठीक है. सोशो कल्चरल सामाजिक कारण जो आपका रीजन था, ट्रेडिशनल कारण था, रीजन था, पॉलिटिकल राजकीय था, आर्थिक था. दीज वर द डिफरेंट कॉजेज. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल कॉज. सबसे पहले समझते हैं आपका पॉलिटिकल कॉज. व्हाट वाज द पॉलिटिकल रीजन व्हाई अमेरिकन्स दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर, they started indulging in revolution. So when we look at the political cause, you should remember that in 1606 or 1607 the first colony was established. 1607 में पहली कॉलोनी को establish किया गया था, ठीक है. So Americans they worked on a journey from one colony to 13 colonies. 1 से 13 colonies तक का सफर था ये. This was a journey of one colony till 13 colonies. And we had over here a very important system of administration in America. अमेरिका में हमारा एक बहुत ही प्यारा सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का, which was seen in India also, ठीक है. This system could be seen in India also. What is this system? We are going to draw a चार्ट फॉर दैट. उसके लिए हम एक चार्ट ड्रॉ करने वाले हैं. यू कैन ड्रॉ द सेम चार्ट इन योर मेन्स आंसर राइटिंग ऑल्सो. मेन्स के आंसर राइटिंग में आप सेम चीज बना सकते हो. सो एट द फर्स्ट लेवल वी हैड गवर्नर एंड वी हैड मिलिट्री चीफ. फर्स्ट लेवल पे हमारे पास गवर्नर थे, मिलिट्री चीफ थे. ऑन द सेकेंड लेवल वी हैड द लेजिस्लेचर. थर्ड लेवल वी हैड द एग्जीक्यूटिव, ठीक है. एम आई क्लियर? So this is known as the political administration system which was there in America, ठीक है. Now here we had governor at the top, then legislature, then executive. Now when we look at the legislature and executive, जब हम इन दोनों points की बात करते हैं, here the people of the colony were only appointed, ठीक है. तो people in the North American continent, the people of the colony, the local people, they were appointed as the legislature and the executive. So यहाँ पर आप बोल सकते हो local representation was there, ठीक है. Here we had local representation. People of the colony, they were given post in the legislature and executive. Local colonial government, you can say local colonial government, ठीक है. So here we had the local colonial government, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? Now coming on to the position of governor or military chief, इस पोजीशन पे आते हैं. Here the people as on the position of governor and military chief, they were appointed by England. तो ये जो ब्रिटिशर्स थे, दीज वर द ब्रिटिशर्स हु केम फ्रॉम इंग्लैंड टू हेड द कॉलोनीज, ठीक है. हियर नो लोकल रिप्रेजेंटेशन वाज देयर. वी सी दैट वी हैड लोकल रिप्रेजेंटेशन एट द टू लेवल्स, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, बट एट द हेड टॉप लेवल इट वाज अपॉइंटेड बाय इंग्लैंड ओनली. सो राइट इट डाउन दैट इनिशियली, इसको चीज को लिख लो, दैट इनिशियली दिस पॉलिटिकल सेटअप, इनिशियली दिस पॉलिटिकल सेटअप वाज लाइक्ड by the North Americans and it was accepted also. इसको accept भी किया गया, but not for long, ज़्यादा समय के लिए नहीं, ठीक है. Initially because North American continent they were setting it up, settled continent नहीं था, set किया जा रहा था, it was getting settled up, it was not already a settled up continent, right. So when the Britishers were setting it up, initially the people of North America, they were liking this administrative system, but by the year 1770s, ठीक है, by the year 1770s the Americans started demanding home rule. इन्होंने स्वराज की घोषणा कर दी. They started demanding home rule because now they adapted themselves to the administration.
because they were given local representation ना in the legislature executive, so they learned how to administer. इन्होंने सीख लिया. ये गलती हो गई ब्रिटिशर्स की. This was the fault of Britishers that they gave them local representation. Now you know Americans used to say that we know how to administer. Now we don't need your supervision. अब हमें आपका supervision चाहिए ही नहीं. We don't need Britishers supervision. We don't need this governor coming from England. We can hire our own governor. We can appoint our own people to this position. We know how to organize things. We know how to administer things. ठीक है. So here by 1770s इस time period तक we had a new movement that is known as home rule versus imperialism. हमारे पास एक नया ही मूवमेंट आ गया जिसको हम बोलते हैं होम रूल वर्सेस इंपीरियलिज्म. वी स्टार्टेड विटनेसिंग दिस मूवमेंट वेयर इन द अमेरिकन्स, जिसके अंदर हुआ क्या दैट द अमेरिकन्स दे चैलेंज्ड ओपनली, दे चैलेंज्ड इंग्लैंड. इन्होंने ओपनली इंग्लैंड को चैलेंज करना शुरू कर दिया. ठीक है, पॉइंट क्लियर. सो दिस इज द फर्स्ट रीजन. ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉलिटिकल रीजन. नाउ द सेकेंड रीजन आता है आपका द सोशल रीजन्स. दिस इज द सेकेंड रीजन, दैट इज द सोशल रीजन्स. ठीक है. नाउ दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. ये हमें काफ़ी केयरफुली समझना है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट वी हैव द पीरियड ऑफ 1607. ठीक है, विच इज रफली द 17th सेंचुरी. 1607 What did England do? We are going to study in a timeline format. हम एक स्टोरी फॉर्मेट में टाइमलाइन के फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं ताकि so that you can revise it very well, ताकि आपके रिवीजन में दिक्कत ना हो. ठीक है. So we have England. England what it did is it settled. England started settling the Americans. Americans को सेटल करना शुरू कर दिया इंग्लैंड ने by the 17th century. ठीक है. And England society, ठीक है, इट वॉज अ वेरी रिस्ट्रिक्टिव एंड कंजर्वेटिव सोसाइटी. इनकी जो सोसाइटी हुआ करती थी बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव सोसाइटी हुआ करती थी. ठीक है, इट वॉज अ वेरी कंजर्वेटिव सोसाइटी, वेरी रिजिड सोसाइटी. यू कैन राइट दीज फीचर्स. वेरी इलीटिस्ट सोसाइटी. व्हाट डू यू मीन बाय इलीटिस्ट? दैट देयर वर क्लासेस दैट वर डेवलप्ड इन इंग्लैंड. अपर क्लास, अपर मिडल क्लास, लोअर क्लास, देयर वर डिफरेंट क्लासेस एंड प्रेफरेंस वॉज गिवन टू ओनली अपर क्लास. इलीटिस्ट मतलब प्रेफरेंशियल बेस्ड सोसाइटी थी, यानी कि प्रेफरेंस सिर्फ ज़्यादा अमीरों को ही दिया जाता था, बाकी लोग भेड़ बकरी हैं. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है. इट वॉज अ प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी एंड इट वॉज अ प्रैक्टिस इन इंग्लैंड दैट द इलीटिस्ट क्लास पीपल यूज टू वियर टॉल हैट्स. जो अमीर लोग हुआ करते थे ना, बड़े खानदान से आया करते थे, बड़ी बड़ी हैट्स पहना करते थे. यू मस्ट हैव सीन इन द मूवीज ऑल्सो, इन पिक्चर्स ऑल्सो, कार्टून्स ऑल्सो, दैट द प्रिविलेज्ड क्लासेस राइट इन अमेरिका, इन इंग्लैंड, दे यूज टू वियर वेरी टॉल हैट्स, बड़ी बड़ी हैट्स पहना करते थे. ठीक है. सो इट वॉज अ वेरी इलीटिस्ट सोसाइटी. एंड वॉट इंग्लैंड स्टार्टेड डूइंग, इन्होंने क्या करना शुरू किया, दे स्टार्टेड डिपोटिंग द कॉन्विक्ट्स टू अमेरिका. ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो भी लोग इनके स्टेट में, इनके कंट्री में अगर कॉन्विक्ट्स हैं या फिर क्रिमिनल्स हैं, उनको अमेरिका भेजना शुरू कर दिया. दे वर ट्राइंग टू क्लियर देयर सोसाइटी, दे वर ट्राइंग टू फिल्टर देयर सोसाइटी. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है. सो इंग्लैंड व्हाट इट स्टार्टेड डूइंग, इट स्टार्टेड क्लियरिंग ऑफ इट सोसाइटी, ऑल द कॉन्विक्ट्स, क्रिमिनल्स ऑफ देयर सोसाइटी, दे स्टार्टेड डिपोर्टिंग देम बैक टू अमेरिका. अमेरिका में भेजना शुरू किया. ठीक है. ऑल द अनएम्प्लॉयड पीपल, लेस एजुकेटेड पीपल, द कॉन्विक्ट्स, द क्रिमिनल्स, द अक्यूज्ड, ऑल ऑफ देम वर शिप्ड टू अमेरिका. सबको छटनी करनी शुरू कर दी. जो भी आपके क्रिमिनल्स हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं या फिर अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उन छोटी क्लास के लोग हैं, सोशल क्लासेस में छोटी कैटेगरी के लोग हैं, सबको अमेरिका भेजना शुरू कर दिया. ठीक है. एंड दीज पीपल हु आर कमिंग टू अमेरिका एंड द नेटिव्स ऑफ अमेरिका, दे वर इनिशियली दे वर नॉट अपोजिंग इंग्लैंड बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ इंग्लैंड. ठीक है. इंग्लैंड की पावर से थोड़ा सा डरते थे इनिशियली लोग, तो इसलिए किसी ने क्वेश्चन नहीं किया. नोबडी इनिशियली क्वेश्चन दिस. ठीक है, द स्टेप ऑफ इंग्लैंड. सो इन द 17th सेंचुरी वेरी इजीली इंग्लैंड वॉज सेंडिंग ऑल द बैड पीपल फ्रॉम देयर सोसाइटी टू अमेरिका. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर. नाउ कमिंग ऑन टू द टाइम पीरियड ऑफ, अब हम बात करते हैं किस टाइम पीरियड की, 1730 की. 1730 मीन्स रफली अराउंड 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें. this time period, when we talk about this time period, here write it down that we see that English society, there was no change in the English society. Even after deporting so many people to America, there was no change in the English society. It was again as it is rigid थी, conservative by thought. ठीक है, it was also very conservative by thought. It was elitist, same, कोई change नहीं आया इनमें. But right,
हमने क्या की, इन्होंने एक और बात कहनी शुरू कर दी. वन मोर थिंग दे स्टार्टेड कोटिंग इट अगेन एंड अगेन, दैट वी आर डेवलपिंग अमेरिका. हमने अमेरिका को डेवलप किया है, हम ही हैं जिसकी वजह से अमेरिका बन रहा है. अमेरिका इज नथिंग विदाउट इंग्लैंड. दिस वॉज द स्टेटमेंट गेटिंग पास्ड बाय ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स इस तरीके के स्टेटमेंट को पास करना शुरू कर रहे थे बाय 18th सेंचुरी, दैट वी आर द वन हु आर द फादर एंड मदर ऑफ अमेरिका. दे आर नथिंग विदाउट अस, वी आर द वन हु आर सेटलिंग देम. हम ही तो इनको सेटल कर रहे हैं, ठीक है. एंड ऑन द अदर हैंड अमेरिकन्स, अगर हम इनकी बात करें अमेरिकन्स की, ठीक है, देयर सोसाइटी वर लिबरल, ठीक है, देयर सोसाइटी वॉज प्रोग्रेसिव. वाई? बिकॉज ऑल द पीपल हु यूज टू पॉइंट आउट against the conservative nature of England society, they were deported to America. For example, let's say Abhishek, he is trying to raise his voice against the English Parliament, British Parliament, that you are very conservative society, you should respect our nation, our culture, you should respect different traditions, right? So what they will do, English Parliament क्या करेगी, they would write off, क्या करेंगे, डिपोर्ट कर देंगे अभिषेक को अमेरिका में. कोई भी आकर अगर फिंगर पॉइंट करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा. ही और शी विल बी डिपोर्टेड इफ ही और शी ट्राइज टू क्वेश्चन द इंग्लिश पार्लियामेंट और इंग्लिश सोसाइटी, ठीक है. सो ऑल द फ्री माइंडेड पीपल, ओपन माइंडेड पीपल, फ्री थिंकर्स, प्रोग्रेसिव माइंडसेट, पीपल ऑफ प्रोग्रेसिव माइंडसेट, दे वर डिपोर्टेड बैक टू अमेरिका. वो लोग जो कि प्रोग्रेसिव माइंडसेट के थे, उनको क्या किया जाता था, अमेरिका में डिपोर्ट कर दिया जाता था, भेज दिया जाता था. सो अमेरिकन सोसाइटी वाज अ लिबरल सोसाइटी बिकॉज ऑल द पीपल वर प्रोग्रेसिव. All the people, they had hatred in their hearts against the Britishers, right? They were liberal people, free, open-minded people, ठीक है. So America's society, it was getting liberal in nature, it was getting progressive in nature. धीरे धीरे progressive हो रही थी ये society, ठीक है. So they started saying that we are Americans first, we are not colonies. हम colonies थोड़ी हैं, हम तो Americans हैं, ठीक है. Point clear हो रहा है? So you can say, आप बोल सकते हो, over here you can say that from 17th century to 18th century, 17th century से 18th century तक we see emergence of political, social and ideological conflict between England and Americans. जहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, तो हम कह सकते हैं इजीली वी कैन से दैट फ्रॉम 17th to 18th सेंचुरी वी सी अ ट्रांजिशन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, ठीक है. हमें दिखता है अमेरिकन सोसाइटी का ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मीन्स अ चेंज इन द अमेरिकन सोसाइटी, ठीक है. पॉइंट क्लियर. नाउ वी हैव स्टडीड ओवर हेयर अबाउट डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन्स. हमने समझ लिया अमेरिकन्स के बीच में डिफरेंस, एंड हमने समझ लिया इंग्लैंड के बीच में डिफरेंस. वी हैव अंडरस्टूड दीज टू बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन अमेरिकन्स एंड इंग्लैंड. व्हाट इज द डिफरेंस? दैट अमेरिकन्स वर लिबरल्स, ये लोग लिबरल्स हुआ करते थे, एंड दे वर प्रोग्रेसिव ऑल्सो, ठीक है. एंड वी हैव सीन दैट द इंग्लैंड वॉज इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर, दैट मीन्स दे यूज टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स, ठीक है, एंड मटीरियलिस्टिक. और ये क्या थे? मटीरियलिस्टिक. दैट इज वाई दे वर एक्सप्लॉइटिंग इंडियंस ऑल्सो. इन्होंने इंडियंस को भी सेम वे में एक्सप्लॉइट किया है, ठीक है. सो अमेरिकन्स एंड इंग्लैंड्स व्हेन वी क्लब देम टुगेदर, जब हम इनको क्लब करते हैं, ठीक है, तो ये आप चार्ट बना सकते हो. यू कैन क्रिएट दिस चार्ट. व्हेन वी सॉ द इमर्जेंस ऑफ लिबरल सोसाइटी इन अमेरिका, प्रोग्रेसिव सोसाइटी इन अमेरिका, वी सॉ द डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन कल्चर. आज के टाइम पे आप वेस्टर्न कल्चर की बात करते हो ना, यू ऑल टॉक अबाउट वेस्टर्न कल्चर, अमेरिकन कल्चर. दिस टर्म स्टार्टेड डेवलपिंग व्हेन द अमेरिकन सोसाइटी स्टार्टेड डेवलपिंग. धीरे धीरे जब अमेरिकन सोसाइटी डेवलप कर रही थी ना, वी गॉट दिस टर्म अमेरिकन कल्चर, ठीक है, विच वॉज कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, इट वॉज एन ओपन सोसाइटी, फ्री माइंडेड पीपल, प्रोग्रेसिव सोसाइटी. वहाँ पर बड़ी बड़ी डिग्रीज पर या बड़ी बड़ी पोजीशन पे फोकस नहीं किया जाता. The Americans, they do not focus on big positions. Only privileged classes will be given all the benefits. No, this is not the thinking of Americans. Everybody is equal there. Everybody can do whatever they want to do if it is valid and legal, right? तो आप किसी भी तरीके का जॉब कर सकते हो. छोटा सा छोटा जॉब भी रिस्पेक्टेबल है. इवन अ स्मॉल मीगर जॉब इज ऑल्सो रिस्पेक्टेबल जॉब, ठीक है. वेरी ओपनली यू कैन कैरी आउट any profession that you want to do. No profession is smaller. कोई भी छोटा प्रोफेशन नहीं होता है, ठीक है. So Americans, they started developing this American culture,
इन्होंने अमेरिकन कल्चर डेवलप करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टडी द चेंज इन द सोसाइटी, सोसाइटी का चेंज देख लेते हैं, ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी को देख लेते हैं। लेट अस स्टडी द अमेरिकन सोसाइटी फर्स्ट। सो दिस ट्राइंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर यू आर मेकिंग इट। एट द टॉप ऑफ दिस सोसाइटी वी हैड 3 people, ठीक है, 2 at the bottom end and 1 at the top. At the top of the society we had Americans, ठीक है, सोसाइटी के टॉप पर हमारे पास अमेरिकन्स हुआ करते थे। एंड हु वर दीज अमेरिकन्स, ये अमेरिकन्स कौन हुआ करते थे? दे फॉट फॉर देयर ओन इंडिपेंडेंस एंड दे वर द पीपल हु वर डिपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया था ना, दैट वी स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, पीपल हु वर डिपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, they were at the top of this society, ठीक है, they were majority of the people at the top of the society and they fought for independence, इन्होंने ही लड़ाई करी, they fought for independence, okay। now at the bottom level of the American society we had natives, यहाँ पर थे हमारे पास natives, they were known as red Indians, they were the people who were indigenous to the North American continent, ठीक है, ये वो लोग थे जो कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के इंडिजीनियस पीपल थे, काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे थे। लाइक इन इंडिया वी हैव ट्राइब्स, इंडिया में हमारे पास ट्राइब्स थे ना, सेम वे वी हैड नेटिव्स इन अमेरिकन सोसाइटी, ठीक है। देन ओवर हियर वी हैड अनदर कैटेगरी ऑफ पीपल, दोज वर द स्लेव्स, स्लेव्स हु वर ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका, स्लेव्स जो कि अफ्रीका से लाए गए थे, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। दी स्लेव्स विच वर ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका, तो दीज वर दी 3 कैटेगरी ऑफ पीपल विच फॉर्म द अमेरिकन सोसाइटी। ये वो 3 कैटेगरी थी लोगों की जो अमेरिकन सोसाइटी को जिन्होंने बनाया था। एंड मेन पीपल हु वर फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस वर दी अमेरिकन्स हु वर दी पीपल डिपोर्टेड फ्रॉम द नेशन ऑफ ब्रिटेन, ओके, पॉइंट क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड रीजन, दैट इज द इकोनॉमिक कॉज। अब थर्ड रीजन की बात करते हैं जो कि आपका इकोनॉमिक कॉज। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सोसाइटी, जब हम सोसाइटी की बात करते हैं वी सी द चेंज बिटवीन द सोसाइटी, ठीक है, हमने सोसाइटी में चेंज देख लिया, द सोसाइटी चेंज इनटू अ लिबरल सोसाइटी एंड अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। नाउ द नेक्स्ट लेवल ऑफ चेंज वाज दैट दे इंकरेज्ड, राइट इट डाउन, दे इंकरेज्ड मटीरियलिज्म। अमेरिकन सोसाइटी इंकरेज्ड मटीरियलिज्म because the people were hard working in nature. As you all know that initially the North American continent was not a settled continent, ठीक है, initially जो North American continent था settled continent नहीं था। When people were deported from Britain, they came here, they started clearing of the jungles, they started creating houses, industries, factories, etc. So the people who were deported from Britain with their hard work, they created this whole continent into a nation. इस कॉन्टिनेंट को एक नेशन में, एक पॉलिटिकल नेशन में तब्दील किया लोगों ने अपनी मेहनत से, ठीक है। पीपल वर हार्ड वर्किंग, दे वर सेल्फ मेड, ठीक है, पीपल हु केम टू नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम ब्रिटेन, दे वर सेल्फ मेड पीपल, ठीक है। सो दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग देयर ओन लैंड, देयर ओन फैक्ट्रीज, देयर हाउसेज एटसेट्रा, देयर एस्टैब्लिशमेंट्स। सो विच लेड टू, इससे हुआ क्या, दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इससे ट्रेड एंड कॉमर्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ। एंड दिस ऑल्सो मेड देम इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन नाउ, ठीक है। सो देयर बॉन्ड वॉज इंक्रीजिंग, जो बॉन्ड था उनका आपसी जो तालमेल था, रिश्ता था, वो बढ़ रहा था। दे वर गेटिंग इंटरडिपेंडेंट, दे वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन देयर मदर कंट्री, ब्रिटेन पे अब डिपेंडेंट नहीं थे, आपस में ही इंटरडिपेंडेंट थे, देयर बॉन्ड वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। So that is why economically they were becoming strong, economically they were becoming confident, they were no longer dependent on Britain for resources. That is why they started protesting against the Britishers. When we are not dependent on you, when we do not need anything from you, then why you are becoming our, you can say master and turning us into slaves. जब हम आप पे डिपेंडेंट ही नहीं है, हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं, वी कैन डू आवर ट्रेड एंड कॉमर्स, वी कैन एडमिनिस्टर आवरसेल्व्स, देन व्हाई यू आर बिकमिंग आवर मास्टर, आप हमारे मास्टर क्यों बन रहे हो, ठीक है, हम आपके स्लेव क्यों बने। when we have the capability to trade, then why should we be the slaves, okay? So that is why, because of the economic causes, they started protesting against them. Now another very important point over here is, यहाँ पर एक बहुत ही important point आ जाता है, ठीक है, and that point is the tax system, ठीक है।
अब ये जो पॉइंट आता है ये आपका है टैक्स सिस्टम का पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक टी टैक्स था जो कि ब्रिटिशर्स ने इम्पोज किया था। देयर वाज अ टी टैक्स विच वाज इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। नाउ ओवर हियर आई हैव, यस, दिस इज द टी एक्ट, ठीक है। Just give me a sec. So we had the Tea Act of 1773, if you can see over here. It was an act of Parliament of Great Britain. This law made American companies pay tax on tea to the British. You all know that North American continent, it was a continent which was very cold. आप सब जानते हो North American continent जो है बहुत ही काफ़ी cold continent था. So commodities like tea, commodities like woolen clothes, right, the warm clothes, they were very necessary for those people. woolen clothes की commodity या आप बोल सकते हो टी जो होती थी, चाय जो होती थी, ये commodities बहुत essential होती थी उनके लिए, ठीक है। and the Britain was charging all those commodities, right, which were very essential for the survival of the people in North America, right. They were more dependent on beverages, yes, ठीक है, and they were dependent on warm clothes also, and Britishers were overtaxing and overcharging all those essential commodities, right. That is why the Americans started protesting. British इसी वजह से Americans ने कहा कि भाई जो essential commodities है उस पर भी तुम अंधाधुंध टैक्स ले रहे हो, मार ही दो हमें, ठीक है। तो इसीलिए ब्रिटिश अमेरिकन्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. They started protesting that this is enough. You have no heart. You are heartless people, right? So it is considered as the catalyst of the Boston Tea Party, the protest which was carried out in the name of Boston Tea Party, जहाँ पर अमेरिकन्स ने कहा हम कोई टैक्स नहीं देने वाले, भाड़ में जाओ. We are not going to give any tax. Go to hell. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को. Now let us study about the Boston Tea Party. ठीक है, अब समझते हैं बॉस्टन टी पार्टी के बारे में. So in the Boston Tea Party we have studied that 1773. So when we talk about the Boston Tea Party, 1773 में हमारा न्यू टी एक्ट पास होता है. ठीक है, न्यू टी एक्ट which was passed. Now Britishers implemented this act in North America. So North Americans obviously had to pay this tax to the Britishers. ठीक है, टी पार्टी में हम पढ़ेंगे 1773 में न्यू टी एक्ट वॉज पास्ड. ठीक है, न्यू टी एक्ट पास किया गया. एंड दिस टैक्स दिस एक्ट it imposed, write it down, it imposed a tax on import of tea, on import of tea. तो अमेरिकन्स टी को इम्पोर्ट करें तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, एसेंशियल कमोडिटी पे टैक्स देना पड़ेगा. इट वॉज अ सिंबल टू शो दैट ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड द राइट टू टैक्स द कॉलोनीज. तो यहाँ पर लिख सकते हो, इट वॉज अ सिंबल टू शो दैट Britishers had the right to tax the colonies. ठीक है, basically they knew that the Americans they are starting protest. ठीक है, they are starting their protest against Britishers. So in order to show them their place, उन लोगों को उनकी जगह दिखाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, टैक्स लगा दिया कि भाई अब छोटी से छोटी चीज़ पे भी हम टैक्स लगाएंगे आपको ये बताने के लिए कि अभी हम राजा हैं और तुम गुलाम हो. ठीक है, टू शो देम दैट स्टॉप योर प्रोटेस्ट, वी आर स्टिल द मास्टर एंड यू आर द स्लेव्स. दे स्टार्टेड टैक्सिंग इवन लिटिल थिंग्स. पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, सो दिस वॉज अ सिंबल, ये एक तरीके का सिंबल था. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. बट अगेन अमेरिकन्स वर नॉट क्वाइट. अमेरिकन्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस एक्ट ऑल्सो. अमेरिकन्स चुप बैठने वाले नहीं थे, उन्होंने बोला हम इसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करेंगे. सो अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन्स व्हाट दे डिड, इन्होंने क्या किया, ग्रुप ऑफ अमेरिकन्स दे ड्रेस्ड एज रेड इंडियंस. अमेरिकन्स का एक ग्रुप आया, उन्होंने खुद को रेड इंडियंस की तरह ड्रेस किया, द नेटिव्स की तरह ड्रेस किया. दे क्लाइम्ड ऑन द शिप्स एंड थ्रू अवे द टी बैग्स. जो टी के बंडल्स थे ना, भरी भरी बोरियां थी चाय की, उन पूरी बोरियों को उठा के समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया. दे स्टार्टेड throwing all those tea bags and tea bundles into the Boston Harbor. ठीक है, in the ocean में फेंकना शुरू किया. And this event took place on 16th December 1773. They called it their own tea party. उन्होंने इसको अपनी खुद की टी पार्टी बोला कि ये हमारी टी पार्टी है, दिस इज आवर टी पार्टी. ठीक है, जैसे आप लोग ब्रिटेन में टी पार्टी करते हो ना सारे बैठकर, ये हमारी टी पार्टी है, चाय की बोरी उठाओ फेंको, बोरी उठाओ फेंको.
ठीक है, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, दे सेड दिस इज आवर वे ऑफ सेलिब्रेटिंग टी पार्टी, ठीक है, पॉइंट क्लियर। सो दिस इवेंट इज नोन एज बोस्टन टी पार्टी, इस इवेंट को हम बोस्टन टी पार्टी बोलते हैं। एंड व्हाट डिड द ब्रिटिशर्स डू, हार्श पनिशमेंट्स वर गिवन, ठीक है, टू द पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन दिस टी पार्टी, जिन लोगों ने इस टी पार्टी में पार्टिसिपेट किया था उनको कड़ी सजा दी गई इन 1774 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। एंड इन 1774, राइट इट डाउन, द इनटॉलरेबल एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इनटॉलरेबल मीन्स वी विल नॉट टॉलरेट योर स्टूपिड बिहेवियर, हम आपका स्टूपिड बिहेवियर टॉलरेट ही नहीं करने वाले, ठीक है, कुछ भी करोगे आपको सजा मिलेगी। So before we move forward to the cultural reason, this is very important announcement for all of you. आप सभी के लिए एक छोटी सी announcement है, ठीक है। So this is regarding the classes that we have launched on Unacademy Plus. They are starting from 4th of January and I am taking the history batches, ancient, medieval, Indian, modern Indian history, ancient Indian history and medieval Indian history. All the classes in history I am taking them. So there are 3 batches, 6-month batch, 1-year batch and 2-year batches in Hindi, English and bilingual language. So complete preparation of your UPSC, answer writing, prelims, everything will be done, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो सब सारी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी एंड दीज बैचेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, ये आज से शुरू हो रही है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन दिस बैच, यू कैन यूज कोड शर्मा20 टू गेट 10% डिस्काउंट, ठीक है, आप 10% डिस्काउंट के लिए शर्मा20 कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ दीज आर द ओरिजिनल 13 कॉलोनीज दैट वी कैन सी ओवर हियर। आपको सारी कॉलोनीज के नाम याद नहीं रखने, ओनली रिमेंबर द फर्स्ट कॉलोनी विच वॉज इन वर्जीनिया इन जेम्स टाउन, ठीक है, पॉइंट क्लियर। नाउ जब हम कल्चरल रीजन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द कल्चरल रीजन ओवर हियर, यू शुड रिमेंबर दैट देयर वर डिफरेंट पीपल हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कल्चरल चेंज। काफ़ी लोग थे जो कि कल्चरल चेंज में रिस्पॉन्सिबल। वी हैड ओरिजिनल 13 कॉलोनीज, ठीक है। नाउ अब देखो 13 कॉलोनीज आर देयर एंड सो मेनी पीपल वर डिपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन टू अमेरिका, ठीक है। When they came to America, they were open-minded people. They came with their own opinions, philosophy, and they were against the Britishers. So they started writing and making people aware against the British government and their administration. ठीक है, तो होता क्या है कि जब अमेरिकन यहाँ पर डिपोर्ट होते हैं ब्रिटेन में, ब्रिटेन से लोग यहाँ पर डिपोर्ट होते हैं, अमेरिकन बनते हैं, अपनी ओपन विचारधारा या माइंडसेट के साथ आते हैं, यहाँ आकर वो किताबें लिखना शुरू करते हैं, लोगों को अवेयर जागरूक करना शुरू करते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स तुम्हें पागल बना रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू इम्पोज देमसेल्व्स ऑन यू, दे आर ट्राइंग टू फोर्स यू, प्रेशराइज यू, बी अलर्ट, स्टे एक्टिव, रेज योरसेल्फ अगेंस्ट देम, just like Vivekananda, right? There were many people who were spiritually uplifted. They were just like Mahatma Gandhi ji, Rabindranath Tagore. There were many people who were enlightened. Enlightened means they were not sadhus and sants or rishis and munis. No, they knew what is going wrong. उनको पता था क्या चीज़ गलत हो रही है. So examples can be, पहला example हो सकता है जॉन लॉक, ठीक है. He is known as, write it down, he is known as the father of liberalism. इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ लिबरलिज्म बोलते हैं. एंड ही गेव दिस स्टेटमेंट, इन्होंने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दी दैट यू कैन यूज इन योर आंसर राइटिंग ऑल्सो, दैट इज पावर कम्स फ्रॉम द पीपल. जस्ट लाइक इन डेमोक्रेसी वी से दैट डेमोक्रेसी इज व्हेन पावर इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल, राइट. जब लोगों के हाथ में पावर होती है उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं. इन सेम वे जॉन लॉक सेड पावर कम्स फ्रॉम द पीपल. यू कैन नॉट बिकम अ पर्सन हु कैन डोमिनेट एनीबडी. पीपल्स रूल, यस, ठीक है. आप ऐसे चलकर किसी को डोमिनेट नहीं कर सकते. पावर कम्स फ्रॉम द पीपल. व्हेन यू आर इंडल्जिंग पीपल इन द रिप्रेजेंटेशन, इन द बिग पोस्ट, इन डिसीजन मेकिंग, ओनली देन अ कंट्री कैन बी हैप्पी. लोग तभी खुश रह सकते हैं जब आप लोगों को पावर दो. उनको दबाओगे तो लोग खुश नहीं रहेंगे. सेकेंड पर्सन वॉज बेंजामिन फ्रैंकलिन. यू कैन सी हिज फेस ऑन दी $100 बिल ऑफ अमेरिका ऑल्सो, आई गेस, राइट. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को हम देखेंगे अगर, ही स्टार्टेड हिज ओन न्यूज़पेपर. इन्होंने खुद का एक न्यूज़पेपर बनाया विच वॉज नोन एज, राइट इट डाउन, पेंसिल्वेनिया गैजेट. दिस वॉज हिज न्यूज़पेपर इन विच ही ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिशर्स. इस न्यूज़पेपर में इन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज किया ब्रिटिशर्स को. ऑल द एक्ट्स, पॉलिसीज, टैक्स, एवरीथिंग वॉज क्रिटिसाइज्ड. ओके. So Benjamin Franklin, he started his newspaper Pennsylvania Gazette in which he openly criticized people, ठीक है. And he is known as, write it down, the founding father of America.
इन्हीं को हम फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका भी बोलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज थॉमस पेन। नेक्स्ट इंसान आते हैं हमारे थॉमस पेन, एंड ही रोट अ बुक विच इज नोन एज कॉमन सेंस, ठीक है। ही स्टार्टेड मेकिंग पीपल अवेयर। इन्होंने लोगों को अवेयर करना शुरू किया दैट सी यूज योर कॉमन सेंस, अपना कॉमन सेंस यूज करो। somebody is trying to dominate you, use your common sense, you are not slaves। आप slave नहीं हो कि कोई आकर आपको पागल बनाएगा, मास्टर करेगा, चाबुक मार के चलाएगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। एंड दिस बुक केम आउट इन 1776, राइट इन दैट टाइम पीरियड व्हेन रेवोल्यूशन स्टार्टेड। So these people made Americans, write it down, these people made Americans aware about their true character, about their true character and about their capability, ठीक है। The true character, उनका true character उन्होंने देखा है that you are liberal, you are progressive, don't become the slaves of those conservative Britishers। उन conservative और elitist और privilege based society के masters के slave बनने की जरूरत नहीं है। आप अपना true character देखो, you are liberal people, you are open minded, you have open mindset, ठीक है। So you cannot become a slave of any other country। And by 1750s तक आते आते, write it down, that America emerged as one group। सभी लोग, सभी कॉलोनीज एक हो गई, ऑल द कॉलोनीज ऑफ अमेरिका दे केम टुगेदर, दे मर्ज्ड इनटू वन ग्रुप एंड टुगेदर दे स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। साथ में मिलकर इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठानी शुरू कर दी। सो वी हैव सीन जॉन लॉक ऑल्सो एंड वी हैव सीन बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस पेन ऑल्सो, राइट। पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को। तो अगर हम बात करें अमेरिकन रेवोल्यूशन की, व्हेन वी टॉक अबाउट द अमेरिकन रेवोल्यूशन, it had a very profound impact on history। what kind of question can come from American Revolution? इससे आपके लिए क्या question आ सकता है? in mains they can ask you what is the significance of American Revolution। significance means what is the importance। significance का मतलब क्या होता है? importance होता है। what is the importance? इसकी महत्वता क्या है? okay, the revolution led to the establishment of republic based on first written constitution in the world। we have adopted many practices and policies from the US Constitution। This was a marked contrast to other states who were monarchies। उस टाइम पीरियड तक जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ तब बाकी सारे नेशंस मोनार्कियल नेशंस थे। मोनार्की मीन्स व्हेन वन किंग रूल्स द एंटायर नेशन, दैट इज मोनार्की। जब एक राजा बैठकर पूरे नेशन को रूल करता है, एक राजा का रूल होता है। बट हियर दे वर डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। पीपल्स रूल, कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल्स रूल निकल कर आया, ठीक है। इट स्टैब्लिश्ड अ फेडरल स्टेट। वी ऑल्सो हैव अ फेडरल यू कैन से स्टेट। हमारे पास भी एक फेडरल स्टेट है। व्हाट इज फेडरल? व्हेन द सेंटर एंड द स्टेट्स दे वर्क टुगेदर। जब सेंटर स्टेट साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। व्हेन पावर इज डिवाइडेड, जब स्टेट्स में पावर डिवाइड होती है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल स्टेट ऑल्सो वी हैव टेकन फ्रॉम अमेरिका, हमने अमेरिका से ही लिया है, ठीक है। देयर वाज सेपरेशन ऑफ पावर्स, अगेन वी हैव टेकन दिस कॉन्सेप्ट इन इंडिया। इंडिया में भी हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। देन certain inalienable rights were given to the people also। certain fundamental rights were also given। government had a limited control। अगर government को खुली पावर दे देंगे तो government तो लोगों को दबा लेगी। if government is given open powers, everything, government can do anything, then what will it do? it will suppress the people। so that is why limited power or authority of the was given to government and some authority was given to the people also, citizens also, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को यहाँ तक? yes, judicial review also was there। so this is the change that American Revolution brought into India। ये change था जो American Revolution लेकर आया। plus it also united the nations, the colonies, plus it also was, you can say, an inspiration to the other nations। बाकी nations जो colony बनी हुई थी उनके लिए ये inspiration था। all the other colonies, America became an inspiration for them। पॉइंट क्लियर हो रहा है? सो दिस वॉज द बैकग्राउंड एंड द ओवरव्यू ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। ये था आपकी आज की फर्स्ट क्लास जिसमें हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन का पूरा बैकग्राउंड और पूरा ओवरव्यू पढ़ा। अब नाउ दिस वॉज टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास विल बी टुमारो। नेक्स्ट क्लास आपकी कल होने वाली है। पॉइंट क्लियर हो गया?
Thank you everyone for participating in the class. I hope you enjoyed this session. Thank you.